Hello everyone, the next topic is adjoint of a matrix. So what is adjoint of the matrix? It is simply the matrix of transpose of cofactors. Okay, or you see it is transpose of the cofactors matrix. Okay, that is what do we mean by the term adjoint of a matrix. Now what are the cofactors we have already studied when we define a determinant, when we define determinant in terms of cofactors, like for any 3 by 3 a matrix, the determinant is defined as like a11 into its cofactors. Generally cofactors are denoted by capital Aij plus a12 into its cofactor plus a13 into its cofactor, right? Now, why is actually determinate? I'm talking in terms of cofactors, and why is it required? Actual में the use of adjoint is to find the inverse of a matrix. Because for a square matrix, as we have already discussed, that inverse exists only for square matrices. We have talked about this in chapter 3. So inverse of a matrix is defined as 1 by determinant of A into adjoint of A. Right. So this is actually the significance of this topic. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एडजॉइंट्स के टाइम डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया है छोटा सा, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम एडजॉइंट की वेरीफाई करेंगे जिसमें हम इस चीज़ को शायद साथ में इस्तेमाल करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स ले लें, जैसे A11 ले लिया, A12 ले लिया, A13 ले लिया, लेकिन साथ में फैक्टर्स जो हैं, कोफैक्टर्स जो हैं, वो उस रो के ना लें। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट रो ली है और उसकी फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो ली है, लेकिन कोफैक्टर्स अगर मैं सेकेंड रो के ले लेता हूँ, A21, A22, A23, it's your choice whether you denote cofactors by Cij or by Aij. In your textbook they are denoted by capital Aij, so I am using Aij for it. Right, now if you take the sum of product of a row, you take sum of product, right, of a row with cofactors of other row oblique column, this answer will be, sorry, not column, with other row, this product, sum of product will be equal to 0, right? So when you take the sum of product of row with the cofactors of other row, right, it will be 0 in this case. This we will be using in proving some results. Now what is adjoint and how to find it out? ठीक है, adjoint is the transpose of cofactors. How do we find cofactors of a matrix? For that we need to find minors. That's something we have already studied in our previous class, but still if you want me to do one example for you, I'll take up one example here. If you take a matrix as like 1 minus 1 2 1 minus 1 2, and then you take the second row of the matrix as 2 3 5, and the third row as minus 2 0 and 1, right, minus 2 0 and 1, and you want to find adjoint of A, right? For adjoint of A, what you need to find out first is minus, right? Generally we denote minus by Mij. Then you need to find cofactors. So cofactors will be denoting by Aij, and the formula of Aij is minus 1 raised power I plus j into Mij. Right, so let's find it out. M11, first row, first column, first row, second column, M12, then first row, third column, M13. Similarly, M21, 22, 23, 31, 32, 33. ये माइनस निकालेंगे,
ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। एंड सिमिलरली कोफैक्टर्स विल राइट A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. सो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो 4 एंट्रीज आपके पास बच गई, what are the 4 entries left in this first case? It will be 3 5 0 1. इसका डिटर्मिनेंट ले लो, 3 1 सा 3 minus 0 is 3. ठीक है। when you talk about M12, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, क्या एंट्रीज बच गई आपके पास? 2 5 minus 2 1. इनका डिटर्मिनेंट लो 2 1 सा 2 minus of minus plus 10 is 12, right? In this process you will move on, and the next will be 0 plus 6 is 6. Next will be, you will be, this time eliminating second row first column, minus 1 and 0 is minus 1. Sorry. Then 2 2 will be second row second column, 1 plus 4 is 5. Then 2 3 will be 0 minus 2. Then 3 1 will be minus 5 minus 6 is minus 11. 3 2 will be 5 minus 4 is 1. And 3 3 will be 3 plus 2 is 5. Now when you talk about cofactors, just write them like this only. 3 12 6 minus 1 5 minus 2 minus 11 1 and 5. So what is the formula? minus 1 raised power I plus j. ठीक है। अब -1 की दो ही पावर्स हो सकती हैं, या तो इवन हो सकती है या क्या हो सकती है, ऑड। जब ऑड होगी तो आंसर हो जाएगा -1, इवन होगी तो आंसर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए, आई एंड जे इज व्हाट द सबस्क्रिप्ट, ये चेक करिए, 1 + 1 इवन, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो इसको हम बोलते हैं सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैं। पहले आप माइनस निकालिए, एज इट इज उनको कोफैक्टर्स में लिख लीजिए। लुक एट देयर पोजीशनिंग, अगर सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज इवन एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस मत बोलो, सेम चेंज। अगर सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज ऑड, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या था, मैट्रिक्स ऑफ, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का मतलब होता है हमारे पास सॉरी, इफ आई टॉक अबाउट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, राइट, so matrix of cofactors, if write it as C, it will be actually A11 A12 A1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एलिमेंट्स की जगह पर मैं उनके कोफैक्टर्स लिख दूंगा, लेकिन जब मैं उसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो एडजॉइंट अगर मैं इसकी बात करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी व्हाट, फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम। तो क्या करूंगा, इनको मैं, आई हैव रिटन देम रो वाइज, बट व्हाइल राइटिंग इट हियर आई विल राइट देम कॉलम वाइज डायरेक्टली। 3 - 12 6, this is 1 5, next is 2 - 11 -1 and 5. This is adjoint. Or the other way around could have been, if you don't want to do it like this, or you write the matrix of cofactors first of all. ठीक है, this is 3 - 12 6 1 5 2, then -11 -1 5। ठीक है, इनके कोफैक्टर्स लिख दो और फिर एडजॉइंट को लिख दो आप सी के ऊपर ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 and 5। सो हम जनरली एडजॉइंट को ऐसे ही फाइंड करेंगे, बिकॉज जब हमारे पास सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन में टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देयर विल बी वेटेज ऑफ मार्क्स असाइंड टू दिस। ठीक है, अदरवाइज देयर आर शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड एडजॉइंट ऑल्सो, हम उसकी बात करेंगे जाते हुए, और दैट इज जस्ट टू क्रॉस चेक इट। ठीक है, या सिर्फ एडजॉइंट एक नंबर में आ गया हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन हाउ टू फाइंड एडजॉइंट फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। नाउ इफ आई वुड हैव टेकन अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, 2x2 मैट्रिक्स ले लेते तो उसका एडजॉइंट कैसे बनता,
So that could have been very simple. So in a 2 by 2 matrix, if you take a 2 by 2 matrix acts as 1, 2, 3, 4, let's take this one only. Right, so first of all you write minus, then you write cofactors, okay, and then you write whatever you want to write, 1 1 and 1 2, 2 1 2 2, right, only a11 a12 a21 a22 तो corresponding माइनस 2 by 2 के माइनस बड़े आसान होते हैं. 1 1 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा के आ गया 4, 1 2 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा के आ गया 3, 2 1 का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा के आ गया 2, 2 2 में सेकंड रो सेकंड कॉलम जोड़ा के आ गया 1. अब फाइंड करने हमने कोफैक्टर्स a11 1 2 2 1 2 2. कैरिड अवे नहीं हो जाना. कोफैक्टर्स का आपको फॉर्मूला याद है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज पावर आई प्लस जे एम आई जे. a11 write them as they are, some even same some odd, change some, this is 2 1, some is odd, change, this will remain as it is. 2 by 2 में साइन आएंगे सेम चेंज चेंज सेम. 3 by 3 में साइन आते हैं सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज. राइट बॉस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट matrix of cofactors, it will be 4 -3 -2 and 1. And we talk about adjoint, this is C transpose and this will be equal to 4 -3 -2 1. First row will become first column and second row will become second column. Or you could have directly written here, so adjoint of A is writing them column wise, 4 -3 -2 and 1. Okay, so this is how do you get adjoint. अब इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है. जब आप एडजॉइंट निकालते हो 2 by 2 में तो बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है. अगर ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो एडजॉइंट में जाके क्या हो जाएगा, आपके पास ये ए और डी जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगी. डी आ जाएगा इधर, ए आ जाएगा इधर, बी ही रहेगा इधर, सी ही रहेगा, लेकिन इन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. बस दैट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स. मतलब कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है 2 by 2, उसका शॉर्टकट में एडजॉइंट क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो उसके डायगोनल एंट्रीज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, और जो दो बची हुई एंट्रीज है उनके साइन चेंज हो जाएंगे. अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगी. दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स. राइट. इसके बाद हमारे पास एडजॉइंट की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रहती है कि इफ यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स with its adjoint, then the answer is something very very interesting. If you multiply a matrix with its adjoint, answer is determinant of A into I. उस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा. एक बार बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था. राइट. सो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, रादर देन प्रूविंग एन एग्जाम्पल, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और इसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्या हमसे हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. मैं अगर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जर्नल में लेता हूँ, मैं 3 by 3 ऑर्डर के लेता हूँ, A11 1 2 1 3. ठीक है. A21 2 2 2 3, A31 3 3, ओह सॉरी 3 2 एंड 3 3. और इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. तो पहला कोफैक्टर कैपिटल A1 1, इसका कोफैक्टर A1 2, लेकिन जब ट्रांसपोज लूँगा तो इधर आ जाएगा और A1 3. ठीक है. दैट इज ए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी मैंने, this is 2 1, this is 2 2, this is 2 3, this is 3 1, this is 3 2, this is 3 3. सॉरी. ठीक है. क्लियर है जी. अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो क्या होगा, हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी. पहली 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2
3 और इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है सर। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो हम सबको पता है, फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसा ही होता है ना। तो चलिए A1, तो isn't it the sum of product of elements with their cofactors, इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने उसकी बात की थी। दिस इज A11 into its cofactor, A12 into its cofactor, A13 into its cofactor, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है सर। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो विल गेट मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम। ठीक है, जब सेकंड कॉलम से होगा, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और हमने पढ़ा था कि कोई भी रो, ठीक है, अगर दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर 0 आएगा। सो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं। ट्रांसपोज ऑफ, याद है ना, ट्रांसपोज है ना सेकंड रो का हमने, तो ये सेकंड रो के, ये सेकंड रो है, आपको पता ट्रांसपोज में जाके रो कॉलम बन गया ना, तो ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं फ्रेंड्स, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। चेंज द रो, ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स 0, सेकंड रो है, सेकंड रो के कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकंड रो है, थर्ड रो के कोफैक्टर्स 0, थर्ड रो है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, थर्ड रो है, सेकंड रो के कोफैक्टर्स, थर्ड रो है, थर्ड रो के कोफैक्टर्स, एंड मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत करिएगा डिटर्मिनेंट्स के साथ, मैट्रिक्स है तो थिंग्स कैन बी टेकन आउट, पता तो है आपको। सो द स्केलर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट इज सम रियल नंबर, सो इट कैन बी टेकन आउट। हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। जब डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है एक्सरसाइज में। यहाँ पर हमसे बोला जाएगा फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of A into A, and this is equal to determinant of A and I. So this is also equal to this thing, adjoint of A into A. ठीक है सर। तो वो एक डेफिनेशन जो डिटर्मिनेंट्स की हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ रो विद इट्स कोफैक्टर्स पढ़ी थी, उस चीज़ ने हमें यहाँ पे आके हेल्प किया। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एडजॉइंट के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास बहुत से क्वेश्चंस होंगे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इनवर्स आपको पता है वही मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होती हैं जो क्या होती हैं, नॉन सिंगुलर। सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर if its determinant is equal to 0. A matrix with determinant equals to 0 is said to be singular. तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी एक अप्रोच हम पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये दूसरी अप्रोच है, तो कहता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एडजॉइंट के लिए बात हो रही थी, तो ये आप सबको पता है कि ये सब कुछ चीज़ें जितना कुछ हो रही है सब कुछ किसके लिए हो रही है, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हो रही है। तो अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हम जिनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स के लिए, अगर वो नॉन ज़ीरो है, फिर आप उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एंड देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 by determinant of A into adjoint of A. I hope it is clear to everyone. Now my dear friends,
In elementary transformation, we discussed a case कि whenever after a certain operation, all entries of a row or column become zero. आपको याद होगा मैंने कहा था let's put it into pending, बाद में करेंगे इसको. All entries or of a row or column are zero. तो उस समय क्या होता था, हम लिख देते थे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. याद होगा आपको, ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों ऐसा होता था, यहाँ पे आ जाओ. अगर किसी एक मैट्रिक्स की सारी रोज रो या कॉलम के सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते. हम किसका इन्वर्स निकालते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है. तो ये लॉजिक था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने इस चैप्टर पे आके दिया. ठीक है सर, अब हम करते हैं. सो दिस इज अबाउट द एडजॉइंट. यू कैन डू योर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स. नाउ let me discuss a shortcut with you to find adjoint of a 3 by 3 matrix. The shortcut for 3 by 3, choice is yours. अगर आपका मन करता है जल्दी में सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करिए. उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एकदम से. बट अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन जब आते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं कि थोड़ा इसको अवॉइड करें क्योंकि हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स. कोई एक मैट्रिक्स, जस्ट थिंक ऑफ अ मैट्रिक्स व्हाट एवर यू वांट टू टेक. ठीक है जी. तो सोचा आप लोगों ने या मेरे वाली कॉपी करोगे आप लोग. चलो, आई विल टेक वन केस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. देयर इज अ क्वेश्चन. He is asking us to verify something else, but in that you have to find the adjoint of the matrix, and the matrix is 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3. राइट, अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है शॉर्टकट में. एडजॉइंट, राइट बॉस. क्या करोगे आप, यू विल राइट the matrix, all the entries of the matrix 1 3 1 minus 1 0 0 2 minus 2 3. इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आप आगे रिपीट करोगे एज इट इज 1 3 1 और माइनस 1 0 0. हो गया. अब इसके बाद आप क्या करोगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. ठीक है. इसके बाद अब आप क्या करोगे, you will repeat the top two rows. So this is 1 minus 1 2 1 minus 1. This is 3 0 minus 2 3 0. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपने क्या ले आए थे, C1 C2 और यहाँ पे आपने क्या रिपीट कर दिया बाद में, R1 और R2. टॉप रो को एलिमिनेट कर दो. ठीक है. एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो. राइट. एंड हियर यू गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. आपकी चॉइस, आप इसको रो वाइज लिखते जाओ और उनकी एंट्रीज को कॉलम वाइज लिखते जाओ. यही हम कर रहे थे पहले भी. दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस इनटू दिस 0. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस फॉर्मूले का 3 3 इज द 9 माइनस 11. राइट देम कॉलम वाइज, टेक देम रो वाइज. साथ साथ ही आपका ट्रांसपोज हो रहा है. 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0. दिस इज 0. Right, you come to the next one. This will be here. 0 into 2 is 0 minus or minus plus 3. This is 3. And then you take this one. 3 ones are 3 minus 2 ones are 2. What is the answer? 1. Then what is the next one? 1 into minus 1 minus 0 is what? Minus 1. Now you come to the last one. Minus 1 into minus 2. 2 minus 0 into 2. 0. So this is 2. And then what about the next one? 2 3 is the 6 minus, and minus 2 into minus 1 is minus 2. 6 plus 2 is what? 8. Okay. What about the next one? 1 into 0 is what? 0 minus or minus is what? Plus 3. This is 3. Same change, same change, same change, same change, same. So this is the adjoint shortcut method. I'm again repeating it. What do? You write the matrix as it is.
लिख दिया आपने उसको, फिर उसके C1 C2 को उसके आगे रिपीट कर दो, रिपीट कर दिया, फिर जो आपके पास वो बन जाता है अरेंजमेंट, वो बनेगा 3/5। तो उसके टॉप 2 रोज को वापस रिपीट कर दो। वापस बता रहा हूँ, पूरी मैट्रिक्स एज इट इज लिखी, C1 और C2 को आगे लिख दिया, उसके फिर इस चीज के नीचे फर्स्ट रो और सेकंड रो को उसके नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर टॉप रो और एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी पेयर वाइज लेके। एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत से लोगों को आदत होती है इन दोनों को इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद इन दोनों को करते एलिमेंट कम, नो, पहले और दूसरा विल गिव यू फर्स्ट, दूसरा एंड तीसरा विल गिव यू सेकंड, तीसरा एंड चौथा विल गिव यू थर्ड। फिर नेक्स्ट के लिए आपने इस रो को इस्तेमाल करना है, राइट। सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज हाउ कैन यू फाइंड adjoint in shortcut method. Thank you so much, stay blessed.